All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians as we shoot this on the day of the marquee clash between India and Pakistan. And ICC has organized this beautifully on a day when it can actually rain in New York. But before we get on to that game, let's move on to the other beautifully organized games by ICC. The first one, of course, is Netherlands and South Africa, with South Africa just barely managed to just cross the line against a team which gives them nightmares and has been giving them nightmares for the past 2.5 years. And then we move on to England versus Australia, another rivalry that was really looked forward to, but again a clinical performance by Australia. And फिर उसके बाद West Indies versus Uganda, where unfortunately the host didn't really give a chance to Uganda to actually come back into the match after having scored 173. But we'll start off with the first game. Ankit, पहला गेम, भाई क्या सीन है साउथ अफ्रीका का यार, मतलब इनको ये ऑरेंज कपड़ा देख के, नेदरलैंड्स देख के इनको क्या हो जाता है भाई। अच्छा खासा गेम, इतना सा चेज, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों कर दिया उन लोगों ने। यार नहीं यार, वो लोग पता है नेदरलैंड को देख के मेरे को लगता है उनका पैर ही कांप जाता है। उनको फ्लैशबैक आने लगता है भाई 2022 और 2023 का। और वो दोनों फॉर्मेट में कर चुके हैं ना, T20 और वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के फॉर्मेट में भी कर चुके हैं। तो वही है यार, आई हैड अ रियली वेरी हाई होप फ्रॉम क्लासन। कल वो भी नहीं चले। आई मीन पूरा डिपार्टमेंट टॉप ऑर्डर ही नहीं चला। Only one man who stands and win for South Africa is David Miller. So yeah, ठीक था यार। मेरे को लगा ये भी गया इनके हाथ से, एक और ये लोग ने ले लिया दाग, बट नो, बट बट दे बिफोर वी कम फॉट ऑन टू बैक। बट बिफोर वी कम ऑन टू साउथ अफ्रीकाज बैटिंग, ठीक है, मेरे को एक बंदे का जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है एंड पिछले 2 मैचेस में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो है ओटनील बाटमन धोनी। या ओटविन बाटन, um, उसकी लेंथ देखना. He has not tried to bowl anything that was a yorker. He was only bowling full length, good length और short of good length. उसने 4 विकेटें ली, चारों की चारों good length balls थी. So he is someone who will be regarded as a prospect in South Africa's test match team. That also sort of goes to show कि अब साउथ अफ्रीका अगर हम खेलने जाएंगे, जब भी जाएंगे, we'll also have to face बाटमैन. एंड अभी के लिए ठीक है, इस विकेट पे गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डालना ठीक है, लेकिन जब वो वेस्ट इंडीज में आएंगे तब बैटमैन के वेरिएशंस को ज्यादा लाइक वील एबल टू सी हाउ गुड अ T20 बॉलर इज व्हेन द पिच स्टॉप्स असिस्टिंग हिम or it does not have the similar bounce and pace that is there. But yeah, he's one of those bowlers who's going to bowl a lot of hit the deck, swing in, swing out kind of delivery. So yeah, I think, and he's got a very nice action. He's got a nice, smooth action. So yeah, let's see about that. He plays for the Sunrisers. He plays for Markram's team, I think, if I'm not wrong. तो मेरे को तब से ही वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे T20 में। इनफैक्ट देयर इज दिस एनालिस्ट कॉल्ड प्रसन्ना, जो अश्विन के साथ आता नहीं है, उसने बोला कि उसने बहुत हाईली रेट किया है और बैटमैन को। बट समहाउ जो चेज उन लोगों ने किया, ठीक है। और आपको क्या कहना है, मतलब अंकित, विथ the proper lengths that the Netherlands team bowled? I mean, they found they identified the loopholes when they got a wicket for Riza Hendricks and क्या बोलते हैं डिकॉक का, वो उसी लेंथ पे बॉल कर रहे थे. They were not trying to do anything else. They knew that if we stop running between the wickets, they will definitely do some mistakes, and they did also. रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी देखो ना, एक रन आउट भी हो गया. वो मिक्सअप हो गया, आपस में मिक्सअप कर रहे हो. सो वही है कि वो लोग ने कोई चांस नहीं दिया यार. ट्रिस्टन स्टब्स जैसा इतना हाईली जिसको हमने रेट किया था, क्या बोलते हैं, आईपीएल में, ही वाज नॉट एबल टू क्लिक आल्सो. उससे जा ही नहीं रहा है यार उसका. तो उसका स्ट्राइक रेट देख, वेयर ही वाज बूमिंग इन आईपीएल, एंड दिस 2 मैचेस व्हाटएवर ही हैज प्लेड, रन बॉल भी नहीं है यार, बॉल ज्यादा है, रन कम है. So yeah, I mean they need to come to the table and they need to discuss how they want to move forward. अगर ऐसा रहा, then there will be I don't think so they will able to move
इन सुपर 8। नहीं मूव तो इनफैक्ट सुपर 8 तो चलो नहीं, एज फार सुपर एज 8 तो चलो पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या? व्हेन यू विल गेट एन एक्चुअल मैच विद अ स्ट्रांग ऑपोजिशन, उसके बाद क्या? पर मुझे Yeah. ऐसा लगता है अंकित कि यूएस की ये जो पिच है एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है खेलने के लिए Yes. फॉर द बैट्समैन। एंड इनफैक्ट अभी तक हमने जितने भी स्कोर्स देखे हैं, सिर्फ आज हमने देखा कि हाँ सॉरी कल रात को हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और इनका जो मैच हुआ था वो पहला 200 बना। बट उसके अलावा बाकी सारे के सारे मतलब अफेयर्स जितने भी थे सारे लो स्कोरिंग हुए हैं। ऑफकोर्स इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में भी हमने 183 बना दिए, बट द पिचेस आर नॉट प्लेइंग वेरी वेल। और आई थिंक ऐसे मामले में ना जो ट्रिस्टन स्टब्स और जो डेविड मिलर की पार्टनरशिप थी वो बहुत बहुत ज्यादा क्रूशल थी। इनफैक्ट डेविड मिलर ने कहा भी है राइट एट द एंड that it was Tristan Stubbs who's very young, who's very energetic, and he wants to contribute also, and the kind of performance that he showed during the entire game that really helped us gain that momentum. And David Yeah. Miller को हमेशा ऐसा लगता है ना यार, he's very 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 underrated as a finisher in the game। और मैं बताता हूँ क्योंकि डेविड मिलर का ना बहुत पहले एक इंटरव्यू आया था, उसने कहा था कि यार हम लोग ना चोकर्स नहीं है। आप बार बार हमें ये बोल देते हो कि हम नेदरलैंड से हार जाते हैं कर देते हो, बट वी आर नॉट चोकर्स, वी हैव गॉट अ वेरी वेरी गुड टीम यार, ऐसा नहीं है। एंड वी हैव गॉट एंड द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट वी हैव इन द बैटिंग लाइनअप आप देख लो। नॉट एंड इट्स वेरी फ्यू टीम्स इन ग्लोबल क्रिकेट राइट नाउ कि हमारे पास क्या कहते हैं ऐसा स्ट्रेंथ मिल जाएगा कहीं पे भी। तो आप हमें चोकर्स नहीं बुला सकते। एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबली कैन फॉर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, क्योंकि जितना मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करूंगा ना उतना मैं बाहर की लीग्स में जो है पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ की परफॉर्मेंस विल एक्चुअली हेल्प मी गो to different places and make me understand कि what the conditions are, let's say for example an MLC or a CPL or a PSL जहाँ जहाँ पे मैं खेलता हूँ वो मेरी साउथ अफ्रीकन परफॉर्मेंस की वजह से ही खेलता हूँ, और मेरी हमेशा से प्रायोरिटी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ही रही है। तो Oh. hopefully yeah we get to see a lot more of David Miller, and because he's already 34-35 years old if I'm not wrong, तो साउथ अफ्रीकन बैटिंग भी काफी एज हो रही है अभी धीरे धीरे। Yeah. So yeah, hopefully क्या कहते हैं we get to see more of him and more of credit to him also. But yeah, I think it was only David Miller's performance that actually got South Africa through. So yeah, I mean moving on to the next game, which is the old rivalry between Australia and England. It was very high, and मैं शुरुआत इस चीज से करना चाहूंगा। जब मैंने मैच ये टॉस हुआ और फिर हमने देखा कि भाई ये ऐसी पिच पे खिला रहे हैं जहां पे मतलब एक साइड की बाउंड्री मजाक थी यार अंकित। एक साइड की बाउंड्री छोटी, एक साइड की बाउंड्री बड़ी, और उन्होंने यार देखा जाए तो वैसे ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट भी किया अपने शॉट्स, हम्म यू नो। बट मेरे को समझ में नहीं यार कि आपने पहला ओवर ठीक है आपने कराया मोइन अली से, ठीक है, अच्छा गया, नो डाउट। देन यू डोंट नीड टू गिव अ विल जैक्स। अगर देखा जाए विल जैक्स का रिकॉर्ड, तो विल जैक्स ने सिर्फ पता है 2 ओवर डाले हैं T20 इंटरनेशनल में, 2 ओवर। हाँ ठीक है, वो अपने फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए बहुत सारा ओवर डालते हैं, हम्म डाला है उन्होंने, चाहे वो T20 विटेलिटी ब्लास्ट हो या फिर आरसीबी ने उनको इस बार चांस दिया। बट यू हम्म नीड टू सी कि आपका इंटरनेशनल रिकॉर्ड क्या, आपका स्टैट क्या बोलता है। आपको बॉल नहीं देनी चाहिए थी हम्म जब आर्चर ने इतना अच्छा ओवर डाला, फिर से आपको मोइन अली को ही बैक कराना चाहिए था। दे गॉट द मोमेंटम फ्रॉम द विल जैक्स ओवर। हम्म। पर तुम विल जैक्स की बात कर रहे हो अंकित, मेरे को कल का मैच जब विल जैक्स ने एक्चुअली पावर प्ले में डाला ना तो मेरे को सैमुअल बद्री का ना एक इंटरव्यू याद आया। ठीक है, क्योंकि उसने भी पावर प्ले में आरसीबी जैसी टीम्स के लिए डाला है ओवर्स। तो पावर प्ले के लिए ना वो कहता है कि भाई बहुत ज्यादा कंट्रोल होना आपका जरूरी है, कि आप ऐसी जगह पे पिच करो बॉल को कि बैट्समैन कैन नॉट गेट अंडर द बॉल, एंड द अदर थिंग इज दैट ही कांट मूव ऑन द बैक फुट ऑल्सो एंड पुल इट। तो सुनील नारायण ना ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली करता था फॉर टीम्स लाइक केकेआर, वो पावर प्ले में भी डालता था और डेथ ओवर्स में भी डालता था। और ऐसे में ना रिस्ट स्पिनर्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो समवन लाइक इमरान ताहिर फॉर दैट मैटर, वो ना ही इज वेरी क्विक थ्रू द एयर। तो यूजुअली क्या होता है विद रिस्ट स्पिनर्स, बैट्समैन का ना एक मसल मेमोरी होता है कि यार बॉल ना मेरी ऑफ साइड पे जाने वाली है, तो वो ऑफ साइड पे प्रिडोमिनेंटली खेलने की कोशिश करता है, पर बॉल आ जाती है अंदर। एंड दैट इज वाई पीपल लाइक इमरान ताहिर आर वेरी 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 सक्सेसफुल। एंड इन T20s वो कहता है कि यार आप विकेट लेने के लिए मत जाओ, अदरवाइज यू आर प्लेइंग टू द बैट्समैन गेम। क्योंकि T20 ऐसा गेम है जहां बैट्समैन एनीवे रिस्क लेगा है यार, उसको लेना ही है, उसको रन मारने हैं। सो आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड अगर आपको पावर प्ले में डालना है एज अ स्पिनर तो आपको बहुत ज्यादा करेजियस होना पड़ेगा।
एंड आप अगर दोनों तरफ बॉल स्पिन कर सकते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है, देन यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। पर गेम इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि अश्विन जैसा बंदा पहले कहता था कि नहीं यार, इवन इफ आई गो फॉर बाउंड्रीज आई विल वांट टू गो फॉर विकेट्स, पर आज वो कहता है कि विकेट टेकिंग हैज बिकम वेरी इररेलेवेंट इन T20 क्रिकेट। और मैं आज कैप्टन से पूछ लेता हूँ कि भाई बता दे तेरे को क्या चाहिए, कि मैं कंटेन करूं या मैं विकेट लूं। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन जॉस बटलर गॉट इट अ लिटिल रॉन्ग व्हेन इट केम टू गिविंग विल जैक्स द ओवर, क्योंकि आपके पास वो स्किल नहीं है। अगर चलो स्किल है भी, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है एज अ बॉलर की आप पावर प्ले में इतना डालो। ऑफ कोर्स आपने आरसीबी के लिए किया है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरनेशनल लेवल पे व्हेन यू आर फेसिंग डेविड वार्नर, Yes, ट्रेविस हेड, yes, क्योंकि मोइन अली ने आया, उसने दिखाया कि हाँ मेरे पास, उसने छक्का खाया, बट ही इवेंचुअली गॉट डेविड वार्नर आल्सो आउट। ऑफ कोर्स बॉल थोड़ी लो रही, बट ही गॉट डेविड वार्नर आउट। बट yeah, थॉट्स ऑन ऑस्ट्रेलियन बैटिंग धोनी? ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अगर आप देखो ना, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वाज 5 over 70, इंग्लैंड वाज 7 over 70, पार टू पार चल रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया लूज अ वेरी क्विक विकेट। उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई थी मार्श और मैक्सवेल के बीच, जो 50 बॉल में 65 किया, एंड दैट इज वेयर इंग्लैंड लॉस्ट प्लॉट। ठीक है, correct. अगर वो पार्टनरशिप में, जब मैक्स इज आउट ऑफ फॉर्म राइट नाउ, ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट Marsh is a captain, and Maxwell hasn't played the blitzkrieg innings that he plays. He played at 28, I think he did 28 runs किए उसने 24 balls में, ऐसा कुछ किया है उसने। So that the middle over phase जो है ना ऑस्ट्रेलिया का, वो was much more stronger. Also in terms of David Warner ने जितने भी रन मारे in terms of fours and sixes, okay, all of them have been on the leg side, all of them, mid Yeah, on और final के बीच में। That just goes to show that the awareness that Australia had, short side of the boundary with the wind, और सबसे इफेक्टिव शॉट डेविड वार्नर का इस पूरे मैच में पुल शॉट था। ऐसी विकेट पे आपका सबसे इफेक्टिव शॉट अगर पुल शॉट है ना, तो आपकी लाइन एंड लेंथ में कुछ गड़बड़ है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर। एंड आई थिंक इंग्लैंड थोड़ा सा इंटिमिडेट हो गया था जब वार्नर ने बोला कि हाँ फास्ट बॉलर है तो क्या हुआ, आई एम गोइंग टू यूज हिज स्पेस। वहां पे उन्होंने बोला अच्छा हम ये करते हैं। सो दिस again the same, the warfare that Australia does before the game, in the game, after the game. So yeah. पर ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड आती है यार, दे रियली वर्क ऑन देयर गेम। वो जब भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उन लोगों ने बोला है कि भाई हम पूरी तरीके से पूरा गेम स्टडी कर लेते हैं, हवा किस तरफ जा रही है, डायमेंशंस क्या है, पिच क्या होने वाली है, ऑल ऑफ दैट। एंड आई थिंक कोर्स ये 19 नवंबर से भी हमें पता चलता है कि किस तरीके का होमवर्क करते हैं वो लोग। बट डेफिनेटली देव गॉट अ गुड थिंक टैंक। इंग्लैंड का क्या सीन है भाई धोनी, मेरे को उन लोगों ने क्या कहते हैं, वो बंदा मेंटल कंडीशनिंग का कोच भी बुला लिया, आई हॉक भी कर दिया सब कुछ, पर फिर भी नहीं। जॉस बटलर की इनिंग्स देखना, ठीक है। जॉस बटलर की इनिंग्स में उसने 4 5 चौके मारे और 2 छक्के मारे, ठीक है। और उसका इस मैच में उसका प्रोडक्टिव शॉट था ऑफ ड्राइव, ऐसी विकेट पे, ठीक है। वो बढ़िया खेल रहा था। Suddenly, and I tell you how his wicket fell. Okay, he hit a six to Zampa straight down the ground. Okay, the reverse sweep that he plays is his trademark shot. Okay, um, if he wouldn't have done that and tried continuing the innings or tried to knock it towards long off or long on and taken that single and waited for Zampa to finish his overs, probably he could have taken on Glenn Maxwell rather than taking Zampa completely on. अगर वो मैक्सवेल की वेट करता ना, तो उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता, क्योंकि मैक्सवेल स्टिल ही वाज बॉलिंग फास्ट, बट वो शॉट नहीं डाल रहा था, वो आंख में दे रहा था इसके। और अब मैक्सवेल को फिर आराम से आप रिवर्स स्वीप स्वीप मार सकते हो, बिकॉज इतने ज्यादा बॉल स्पिन नहीं हो रही थी मैक्सवेल। जैसे मोइन अली ने मैक्सवेल को 3 छक्के मार दिए, सेम चीज बटलर करता इफ यू वुड हैव जस्ट वेटेड फॉर दैट मोमेंट टू पास ऑन विद जांपा सेइंग भाई ये पहली बॉल पे विकेट ले चुका है। वहां पे ना थोड़ा सा इंग्लैंड मार खा गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द अप्रोच दैट इंग्लैंड हैड इन द मिडिल, मतलब जब वो खेल रहे थे तब। या तो वो ऐसा नहीं था कि वो मार नहीं, पता नहीं उनका इंटेंट नहीं लग रहा था मारने का। देवर ऑलरेडी लाइक अरे यार विकेट तो ऐसा ही है यार, नहीं मार पा रहे हैं यार, नहीं हम मैं पहले सेटल हो जाता हूँ। जबकि यही लोग बोलते थे कि भाई सेटल होने का टाइम नहीं है, T20 हैज टू गो फ्रॉम द वर्ड गो। So yeah, that phase where again the Marsh and the Maxwell partnership, that is where Bairstow failed, Moeen Ali tried, Brook failed, Will Jacks failed with the bat. So yeah, and I always thought यार कि बहुत deep batting है इंग्लैंड की,
इनको मारना चालू कर देना चाहिए था। तो हाँ, वहां पे वो थोड़ा डिफेंसिव हो गया है, पता नहीं क्यों। पर इसमें सब में ना मेरे को अगेन नासिर हुसैन का वो पॉडकास्ट याद आता है जहां वो बोलता है कि भाई इंग्लैंड हैज टू गेट द सिलेक्शन राइट, और वही चीज इन लोगों ने ना गलत करी थी 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी। नाउ द सिलेक्शन, एंड ही मेड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि उन लोगों को ना रीस्टॉपली जाना चाहिए था, बिकॉज रीस्टॉपली विद हिज कटर्स, यू नो, विद हिज एंड ही कुड हैव यूज द विंड रियली वेल, क्योंकि वो इतना ज्यादा ही इज नॉट वेरी फास्ट एज वुड एंड आर्चर, पर उनका पेस यूज किया डेविड वार्नर ने, ट्रेविस हेड ने, और जो जो आया उनका पेस यूज किया। इनफैक्ट पावर प्ले में भी अगर तुमने देखा हो कि जिस तरीके से ट्रेविस हेड आउट हुआ था, इट वाज विथ द कटर दैट जोफ्रा आर्चर हैड बोल्ड। तो उनका ना रीस्टॉपली का वही है कि मतलब जिस तरीके से उन लोगों ने सिलेक्शन करी थी, मुझे लगता है कि शायद हाँ नासिर हुसैन मेड अ लॉट ऑफ सेंस देयर व्हेन ही सेड कि रीस्टॉपली खिलाना चाहिए था, एंड इवन आफ्टर द मैच ही सेड कि भाई उनको खिलाना चाहिए था। But one team that really makes good selections, मतलब good calls as far as selection is concerned, and they've kept backing एक ऐसा स्पिनर जो कि काफी अंडररेटेड है, वो है एडम जैम्पा। मुझे उसकी बॉलिंग देने में बहुत मजा आया। अंकित, क्या लगता है एडम जैम्पा की परफॉर्मेंस के बारे में? तो एडम जंपा ने पता है बहुत पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि आई हैव ऑलवेज बीन अंडर एस्टिमेटेड एंड व्हेन आई ऑन एंड आई थ्राइव ऑफ। सो एडम जंपा स्टार्टेड हिज करियर एज अ मीडियम फास्ट बॉलर इन अंडर 14, बट वहां पे अंडर 14 में क्या होता था, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि फास्ट बॉलर का इतना ही कोटा है, इससे ज्यादा आप ओवर नहीं डाल सकते। देन ही चेंज टू बिकम अ लेग स्पिनर। ही एडमायर अ लॉट शेन वॉन। और एडम जाम्पा ये भी बोलते हैं कि जब मैं ग्रो हो रहा था 15-16 और 15 या 16 साल का जब था, तो कंट्री में ऐसे भी लोग थे जो मेरे से अच्छा करते थे, मेरे से बहुत अच्छा करते थे, मेरे से अच्छा लेग स्पिन डालता था। बट आई ऑलवेज, मैं ऐसा ब्रेव था कि मैंने कभी ये चीज अपने दिमाग में नहीं आने दी। मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं ही अच्छा कर सकता हूँ। एंड देन जब ही ऑलवेज फाइट फॉर हिज चांस इन ऑस्ट्रेलिया साइड, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नाम थे, यू नो, फास्ट बॉलर्स हो गए, चाहे वो मिचेल स्टार्को, हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो, एंड देयर आर अदर स्टार्स लाइक अ डेविड वार्नर, जहां पे मैं ओवर शैडोड हो जाता था, मेरे बारे में कोई बात नहीं करता था। बट आई वॉज दैट काइंड ऑफ बॉलर हु ऑलवेज गिव अपॉर्चुनिटी टू अ बैट्समैन कि भाई आप मेरे को मारो, एंड यू विल गेट रिलैक्स व्हेन यू स्टार्ट हिटिंग मी, एंड देन यू विल मेक अ मिस्टेक एंड आई विल टेक यू विकेट्स। और यही चीज कल हुई, यही चीज कल हुई। पता है, फिल सॉल्ट और क्या बोलते हैं, बटलर ने गलती की। फन फैक्ट, पता है, ही इज अ विस्की कनोजियर ऑल्सो, एंड ही इज अ वीगन टू। वीगन इसलिए बोलता है मैं पेटा से एफिलिएटेड हूँ, एंड आई डू केयर अबाउट एनिमल्स एंड आई लव एनवायरमेंट। मैं वीगन इसलिए नहीं हूँ कि मेरे परफॉर्मेंस पे कुछ असर पड़ेगा, बट मेरे को यू नो एनिमल से बहुत प्यार है, दैट्स रीजन आई एम अ वीगन। और इस बार के देखो कि आईपीएल में उन्होंने खेला भी नहीं। इस बार आईपीएल में वो अपना नाम निकाल लेते हैं बिकॉज ही जस्ट वांटेड टू रिलैक्स विद हिज फैमिली एंड वांटेड टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग to perform in T20 World Cup. So he's giving priority for his country rather than, you know, going for the money, he said. और उन्हें दूसरी चीज ये भी बोली, when you have a two very, you know, name and fame spinner with your franchisee, I feel like I won't get that much of match also. सिंपल सी बात है यार, आपके पास युजवेंद्र चहल है, रवि अश्विन है, आप मेरे को नहीं दोगे उतना, यू विल नॉट गिव मी प्रायोरिटी, और वो फिर कट ऑफ आ जाता है 4 फॉरेनर्स का। सो रादर देन आई विल वर्क ऑन माई बॉलिंग, rather than I will, you know, spend time with my family. So yeah, I mean, yes, कल भी देखा जाए तो वो स्पेस नहीं दे रहे थे, वो ऐसी जगह बॉल डाल रहे थे, यू नो, कि आप जिधर अगेंस्ट द विंड है उधर ही मारो आप। तो यही है नहीं, यार, बट एडम कल जाम्पा यार कल हर बार, उसने यार अगर उसका स्टैट भी देखो ना यार, एडम जाम्पा का तो यार अच्छा है यार, 96 T20 खेला है, 82 विकेट्स है। अगर वनडे की बात करें तो 162 मैचेस खेले हैं, 96 विकेट्स उसमें भी है। सो या, अगर इकोनॉमी की बात करें तो हसरंगा के बाद T20 में सबसे बेस्ट इकोनॉमी उसका ही है। आई मीन करंट साइड जो देखा जाए, बोलते हैं ना कि सबसे अच्छा बॉलर कौन है, सो या दैट्स जाम्पा ओनली। बट वो ब्रेव बॉलिंग कर रहा था, पता है, वो बॉल या मस्त फ्लाइट कर रहा था। वो बोल रहा है तू, तेरे को सिक्स जॉस बटलर को उसने ये बोला, तेरे को रिवर्स मारना है, तेरे को जो मारना है मार, मैं अपनी लाइन चेंज नहीं करूंगा, ले ले सिक्स मार। सिक्स मार दिया, ओके वेरी गुड, ये ले। तो वो जो बोला ना आपने कि हाँ भाई मैं बहुत ब्रेव हूँ, वो सच में ब्रेव था। ही कुड हैव गॉन फॉर प्लेंटी। मेरे को प्लेंटी 2 मिनट रन। डर लग गया था कि ये मैन जाम्पा हैज गॉन फॉर प्लेंटी इन द पास्ट आल्सो। यस, बट यस।
But very that is the brave point and ना, that is the point with spinners in T20 ना, आप yeah, जाओगे आप रन खाओगे खाओगे, चाहे पावर प्ले है चाहे कुछ भी है, पर लेकिन अगेन he's very brave। और वैसे ही एक युजवेंद्र चहल, पर एक और ब्रेव आदमी था मेरे को, कौन लगता था, रमेश पवार। और रमेश रमेश हाँ, पवार यार। वो भी बहुत फ्लाइट देने का, बहुत फ्लाइट दे, फ्लाइट करता था, मार। ऐसा तो फ्लाइट। तो ये लोग का मेंटालिटी यही है कि जहां पे आप रिलैक्स हो गए, आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, आई विल सी द विंडो कि मेरे को यहाँ पे बॉल डालनी है एंड आई विल गेट योर विकेट। सो दीज बॉलर्स आर लाइक दैट ओनली यार। हमने चहल को कितनी बार देखा है कि ठीक है मैं तेरे को फ्लाइट कराऊंगा, तू बाहर निकलेगा, इसके बाद फिर मैं एक बाहर रख दूंगा, तो तो रिसेंटली विकेट पता है कीपर बहुत तैयार लोग ये कह रहेगा। रहे हैं कि पहले पता है क्या होता था T20 में, पहले सब लोग कहते थे कि नहीं यार स्पिनर विनर का काम नहीं है, सब लोग स्पिनर को आएंगे और हाँ मारेंगे, खत्म करेंगे। हाँ पर अब हाँ। धीरे धीरे उनको लग रहा है कि नहीं भाई, स्पिनर एक ऐसी चीज है जो तुम पावर प्ले में यूज कर सकते हो, एक्चुअली डेथ ओवर में अगर तुम ढंग से यूटिलाइज करो। और ये चीज पता है लोगों बट को, ये कैट सब वेस्ट कौन था इंडीज इस में सब ट्राई में? करना। नहीं, पर कैटलिस्ट पता है कौन था इंडिया में, आईपीएल में? सुनील नारायण को जब यूज किया गौतम गंभीर ने, वो एक्चुअली बहुत लोगों को तब लगा कि नहीं यार एक्चुअली हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज you've got to have first of all the technique and the हम्म talent of course, and the skill level also to do it। क्योंकि आपके हम्म। पास आएंगे मारने। The only game that is now left in a death over or a power play is to just go after the bowling। So you know वो चीज एक फ्यूचर प्रॉब्ली इंडियन कोच, प्रॉब्ली फ्यूचर ले, इंडियन कोच। यार ये पहले लेकिन से चला है। आई हैव सीन सौरव गांगुली गिविंग स्पिनर टू स्टार्ट विथ ओवर। सहवाग को दिया फिर था हमने, उसने एक बारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, याद है? सौरव गांगुली ने ये ट्रेंड सेट किया, देन महेंद्र सिंह धोनी ने, फिर एमएसडी ने वो फॉलो किया, अश्विन आने का बॉलिंग करने, पावर प्ले में, इधर से T20 इधर से वनडे। सो या आई मीन ये ट्रेंड चला आ रहा है। यू जस्ट हैव टू बैक ऑन योर बॉलर। लेकिन आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर जो भी हो, एक बात ना मार्श की देखने लायक थी, द वे ही वाज रोटेटिंग हिज बॉलर्स। देख यार, आपके पास ऑफ स्पिनर तो मैक्सवेल के रूप में पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर तो ऑस्ट्रेलिया के पास और विल जैक्स भी था, बट उनको कहाँ यूज किया, गेम के कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया, ये यार मार्श ना बड़ा वो है, फनी सा है, मस्ती करता रहता है, ही लाइक्स टू हैव फन टाइप बंदा है, एकदम हैप्पी गो लकी। व्हाट इज कैप्टनशिप उस, एंड इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग इन दिस T20, पावर प्ले में ना हर बार 3-4 बॉलर बॉलिंग करके चले जाते। पैट कमिंस भी आ गया, स्टार्क भी आ गया, आपका हेजलवुड भी डाल दिया, फिर एक और बीच में स्टॉइनिस भी डाल दिया, स्टॉइनिस या कोई था। सो दैट एबिलिटी टू मनूवर योर बॉलिंग एंड यूज एवरीवनस स्ट्रेंथ इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया डज रियली वेल। इट्स नॉट अबाउट फील्ड प्लेसमेंट, देख लो यार उसका, वो जहां मारे जा रहे हैं वहां फील्डर था। लाइक इट कांट बी कोइंसिडेंस एवरी टाइम, राइट? इट कांट बी कोइंसिडेंस। And this is where Australia becomes a superior team because they stick to a plan. David Warner इस उम्र में क्या भाग भाग के फील्डिंग किया है यार, या 2 बार, फिर वो ऐसा कर रहा था, बट इट्स दैट्स ग्लेन मैक्सवेल कैच पकड़ के क्राउड को कर रहा है। ही वाज कवरिंग ये आई मीन द ग्राउंड यार। वो सही बोला, डेविड वार्नर पूरा ऑस्ट्रेलिया को ग्राउंड आईसीसी कवर का कर रहा था। प्रेशर क्यों नहीं आता यार? ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में क्यों नहीं दिखता है कभी? वो प्रेशर में ही नहीं दिखते यार। मैथ्यू वेड अगर हंस रहा है जब चौके छक्के पड़ रहे थे तब, अरे ऐसे थोड़ी होता है, इतना मेंटली स्ट्रांग कौन होता है यार? और देखा जाए ऑस्ट्रेलिया ने, पता है, सामने वाले को सेटल नहीं होने दिया, इंग्लैंड को सेटल नहीं होने दिया। ठीक है वो मार रहे थे, सो दे वर नॉट गिविंग देयर बॉलर्स टू रीड देम। यार सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर आपने 2 ओवर दे दिया ना लगातार किसी को, तो सामने वाला पढ़ लेता है कि हाँ तीसरे ओवर में ही आएगा, ये चीज करेगा। तो उन्होंने क्या किया, सारा जो बॉलिंग का उनका स्ट्रेंथ था उन्होंने यूज कर दिया, देन दे बैक टू देयर बेसिक्स with their own bowler when they got the wicket. So yeah, that's a ऑस्ट्रेलिया brilliant move actually. ऑस्ट्रेलिया ने लिटरली शिकार किया है, पता है, शिकार। The kangaroos have hunted the lions, if I must say. But the challenge for the England is nobody's taking a responsibility to just hold the crease and try to rotate the strike. सबको अरे आके लेकिन मारना है। इस बार तो बोला है ना कि आप वल्नरेबल हो तो बोलो, कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, हम बात करेंगे। बात नहीं किया। मैन सिटी चला गया, मेरे को Did लग they रहा है ऑलरेडी मैन सिटी चला did, did they take a psychologist because they were going to lose or because they wanted to feel the nerves of the pressure? So गया। now अभी I ज्यादा don't बात know. करने की जरूरत है भाई, अभी ज्यादा बात करने का जरूरत है। इसके बाद ईसीबी में रॉबकी एंड स्ट्रॉस रहेंगे रहेंगे। टेस्ट मैच के लिए, Yeah. टेस्ट मैच तो ठीक ही कर रहे हैं। या वी प्योर बेन क्रिकेटर। स्टोक्स, बेन स्टोक्स का सही है भाई। जब मैं कैप्टन हूं चला तो गया। मेरे लिए खेलेंगे,
जब दूसरा कोई कैप्टन है तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कब खेल सकता हूँ कब नहीं खेल सकता. या I hope that England doesn't complicate it any further, and hopefully, yeah, I mean, they are able to at least reach the Super 8s, because now the table has become very, very interesting in this group, because even Scotland can, England can, and of course, Australia to definitely will go through. So yeah, it's between Scotland and England, and hopefully, yeah, matlab we are able to at least see one more clash between England and Australia. And but yeah, no, actually we should not be seeing one more clash between England and Australia, because अगर दोनों आ जाते हैं तो इन लोगों ने किया ऐसे है कि भाई दोनों सब फाइनल में आएंगे. तो अपने दोनों. को हाँ. नहीं चाहिए, अपने को नहीं चाहिए. But yeah, moving on to the next game, which happened in the morning between the host nation, West Indies, and of course Uganda. And Uganda didn't really stand a chance. Dhwanil. अब थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये यहाँ पे वो, यार आप प्रोविडेंस में खेल रहे हो, घर है कईयों का वो वेस्ट इंडीज में, घर. एंड अकील हुसैन डूइंग अकील हुसैन थिंग्स. आई थिंक कभी कभी ना यार, द स्किल सेट ऑफ एन इंटरनेशनल टीम just gets too much for you to handle in terms of what lens to bowl, in terms of what to do. I mean, इसमें आप क्या एनालिसिस करोगे? आप 39 ऑल आउट हो गए, इंडिया भी 36 ऑल आउट हुई थी, so it's not, it can be a one off game for Uganda and they can obviously strike back, but sometimes the skill set is a little too high for you to sort of understand कि यार ऐसा भी हो सकता है विकेट्स में. गुयाना में बहुत स्लो भी, अच्छा इतनी भी स्पिन हो सकती है, ये बॉल जो यहाँ पे मैं फॉरवर्ड डिफेंस करता था वो मैं ड्राइव नहीं कर सकता, या मैं ड्राइव इस बॉल को मुझे लॉक करना है, व्हाटएवर थिंग्स दैट दे वांट. सो या, इट्स अ it's one of those games where the skill level becomes a little too superior for an associate nation to handle. इस सब में आरसीबी खुश है. आरसीबी की खुशी. आरसीबी 46 का आरसीबी रिकॉर्ड, T20 खेल रहा है. 46 का रिकॉर्ड नहीं टूटा ना. अच्छा, मेरे को 39. लगा आरसीबी एसोसिएट नेशन हो गया. अरे क्या अरे कहाँ एसोसिएशन. कहाँ आरसीबी घुसाओगे भाई. मैं, मेरे को पता है तुम्हारा ये जो एडम जैम्पा वाला वीगन वाला पॉइंट बोला ना, वो भी तुमने जानबूझ के बोला, क्योंकि एक और बंदा है वीगन, मैं जानता हूँ इंडियन क्रिकेट में. आज क्या खेलने बना वाला है वो है. वीगन. आज खेलने भी वाला है वो. बट यार देख, पता है देखो एक चीज और, मुजीब रहमान ने भी पता है 5 विकेट जब लिए थे ना, तो दोनों का अगर देखा जाए स्टैट्स में चेक कर रहा था, इस बार उसने 3 ये किए हैं शायद, 3 एलबीडब्ल्यू, 2 बोल्ड है अकील हुसैन का. मुजीब रहमान ने उल्टा किया था, 3 बोल्ड 2 एलबी. सेम विकेट पे. सेम विकेट नहीं था, कहीं और भी मैच था, बट ये मैचअप आया था एक कि 5-5 विकेट कैसे लिए गए हैं. सो यार अकील हुसैन के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है यार, कि उसने पहले बोला था कि मेरा टाइम ड्यू है, व्हेनेवर आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल शो माय स्किल्स. बट उसे स्किल्स रेड बॉल में भी ऑलरेडी स्किल कुछ दिखानी ज्यादा थी. हो गए ना यार. ज्यादा हो गए ना. युगांडा was after a high after मतलब they were on a high after beating Papua New Guinea. Yeah, या yeah. Every victory is a victory when you come from such a long journey, and probably this is the only time you're going to watch a televised match where most of us are watching it. At least a few 5% cricket geeks around the world. So जैसे yeah, जैसे तूने बोला यार, क्रिकेट खेलना है ठीक है, सेकेंडरी है, पहला उनका प्राइमरी तो जॉब ही है. जब भी वो हम्म, जॉब पे जाएंगे यार, उनको बाद वही जॉब पे ही जाना है उनको, अपने अपने हम लोग कंपनीज को. जैसा, हम लोग ऐसा एसोसिएट नेशन जैसा. हाँ, अपनी कंपनी को जाके रिप्रेजेंट करना है. सो हमारा यार रीब्रांडिंग होगा अगर कभी होना हो जिंदगी में, तो हाँ, एसोसिएट इंडियंस. हाँ. ग्रेट क्रिकेटर के साथ जब हम खेलेंगे और उनका पॉडकास्ट एकदम ऊपर चला जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं हमारा 1000 पहुंचा, 50,000 पहुंचा, तो ठीक है. He goes. Not much to dissect then in this game. Of course, West Indies, sorry, being very, very clinical and doing what they were supposed to do. And of course, getting that net run rate very, very high. And this group is also very, very important in terms of the entire T20 World Cup, because it has New Zealand also. एंड न्यूजीलैंड को अब भारी भारी जीतना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा भारी जीतना पड़ेगा, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल द काइंड ऑफ लॉस दैट दे हैड अगेंस्ट अफगानिस्तान, एंड देन the kind of victory that West Indies has had today. So I think they have one game now with West Indies also. So वो भी या crucial match होने वाला है न्यूजीलैंड के लिए. That's how cruel can be the game can be if
you are put into such a group. And now we are going to discuss something that the entire world has been waiting for. At least 1.5 billion people, and of course, some half a billion people in Pakistan. At least both these nations will be glued onto the television starting at 8 p.m. in India and 7:30 p.m. in Pakistan. And ICC has chosen to host this game on a day where it can rain at the same time when the game is supposed to be played. And after that, it's sunny. Donald, डर लग रहा है, गला सूख रहा है, क्या हो रहा है? यार पता है इतने इंडिया पाकिस्तान गेम्स हो चुके हैं मेलबर्न में, कहीं कहीं कहीं, और वहां पे ना एक अलग इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर होता था जब भी हम देखते थे कि इंडिया पाकिस्तान चल रहा है। बट इस बार ना थोड़ा सा इश्यूज है यार। एक तो जैसे तूने बोला कि यार बारिश आने वाली है, ठीक है। दूसरा, वो न्यूयॉर्क सिटी में नहीं है, वो नासुआ काउंटी में है। उसमें गाड़ी से जाओगे 40-45 मिनट लगता है उधर पहुंचने में। कैपेसिटी सिर्फ 35,000 की है, जबकि वानखेड़े इज ऑल्सो 39,000, बट वानखेड़े इज बजिंग एंड दिस इज एन ओपन ग्राउंड, सो थोड़ा शोर गुल्ला कम हो सकता है। अपने लोगों ने $2,500 मतलब 2 लाख रुपए की टिकटें खरीदी हैं नॉर्मल वाली। एक टिकट $10,000 की है अगर उनको चाहिए तो। और इन्होंने ना सेंट्रल पार्क में एक वो स्क्रीन विन लगा के एक छोटा सा पिकनिक लगाया, वो सेल आउट हो गया है। वो ग्राउंड में अभी भी टिकट बचा है। दूसरा, ये पिचेस हैं, ठीक है। हमारा मोस्टली मैच पिच 2 या 4 पे हो सकता है, क्योंकि पिच 4 2 बार यूज हो चुकी है। और मिलर ने भी बोला कि पिच 2 बेटर है नेदरलैंड्स के सामने बैटिंग करके। सो पिच 2 और 4 उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो ग्रास वास उगने लगा था, इसलिए इधर उधर बाउंस हो रहा था। They've sort of rolled it down, and the curator himself is here, so he sort of settled it down. So there, India Pakistan is a big event. Like, again, there's a lot of buzz. This time I don't see that excitement everywhere. But Pakistan losing to USA is adding that excitement. Yeah. Okay? So that's something really nice. Apart from that, Imad Wasim is going to come back for this match, so that is great news. Very excited to see Rishabh Pant at number 3. That move, I really want to see how that results into. Surprisingly, Babar Azam has never been dismissed by Bumrah, and he is yet to face Siraj. Arjeeb got him for a golden duck, so that's going to be very, very interesting to see. I want to see what changes Pakistan makes. Does Azam Khan stay? Azam Khan does not stay. And of course, the old rivalry of a left-arm pace bowler versus the best batsman in the world, angling across. And yeah, so excited about these things, but a little this thing that it's in New York and the pitch condition, the rain, etc. New York City, 78 million, which is about 6,500 crores from this game. So बारिश आए, जो भी हो जाए, खेलना पड़ेगा. So yeah, that's the crux of the game. So let's see. 10 ओवर का भी गेम चाहिए. 10 ओवर का ये गेम मांगता है. बारिश हो, 20 ओवर, पानी अरे निकालो. 20 ओवर का मैच होगा आज, नहीं तो कल होगा. बारिश आएगी एकदम से, अचानक से सनरूफ ऐसा क्लोज हो जाएगा ग्राउंड. सरप्राइज. पर पता है, अगर आपने एक गेम के लिए एक्सेप्शन किया तो पूरी दुनिया चढ़ जाएगी, पता है, आईसीसी पे. करेक्ट. से फॉर एग्जांपल बारिश हो गई, ठीक है, और आपने कहा कि नहीं भाई मैं पूरे 20 ओवर खिलाऊंगा. क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजर्स मनी जितना लगता है इस गेम पे भाई, ठीक है, बहुत एडवर्टाइजमेंट गेम मतलब बहुत ज्यादा लगा है, ठीक है. एवरीवन वांट्स टू जस्ट वन एड. चाहे आपको एक स्लॉट चाहिए पूरे टेलीविजन की, मतलब मेरे को यार फर्स्ट 5 ओवर्स दे दो, या फिर क्या कहते हैं आफ्टर 5 to 10 ओवर्स दे दो. दैट वन स्लॉट इन इटसेल्फ इज वेरी 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 एक्सपेंसिव, फ्रॉम अ ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. और इतनी सेल होती है उस चीज की. एंड देयर आर एडवर्टाइजर्स हु प्रेफर, एंड देयर आर बिजनेसेस हु प्रेफर कि भाई आप मेरा पूरे टूर्नामेंट रहने दो, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में मेरा एक एडवर्टाइजमेंट दिखा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए. करेक्ट. So it involves huge money and of course the kind of pressure that ICC will be facing right now. जैसे तैसे तो अभी क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो गया, but you try and understand the commerce behind, like you rightly mentioned भाई, commerce behind an India Pakistan game. अगर वो मैच रिजर्व डे पे चला गया ना, सबसे ज्यादा दिक्कत पता है इंग्लैंड को होगी. सबसे इंग्लैंड पागल हो जाएगा. मेरा क्यों नहीं करा है मैच? हम लोग होम ऑफ क्रिकेट है, तुम लोग पहले से क्रिकेट बना दिया. इंग्लैंड पागल हो जाएगा भाई. और पर इसका भी एक मूव होगा पता है,
कि जो भी रेवेन्यू आएगा थोड़ा रेव शेयर देख लेते हैं, देख लो। हाँ जुगाड़ निकल जाएगा, तू देख, अगर बारिश हुआ कुछ ना कुछ जुगाड़ निकल जाएगा, देख तारपोलिन लगा देंगे लोग, कुछ चाहे 5 ओवर कुछ का तो खिलाए होगा। भाई, लेकिन खिलाएंगे जरूर। पर अंकित क्या हाँ, लगता है, लोग कह रहे हैं कि मतलब बाबर आजम का हाथ वाथ टूट गया है कैच वैच पकड़ के, रोहित शर्मा कह रहे हैं कंधा टूट गया, तो क्या सीन कुछ है? कुछ नहीं भाई, बाबर आजम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, खेलेगा वो। हम्म। बट आज ना खेले, आगे आगे वाले मैच में खेले। तो टॉस जीत के क्या हाँ भाई, करना चाहिए अब बताओ? आज टॉस नहीं जीत के प्लीज। अंकित बताओ क्या करना चाहिए? टॉस जीत के बोला आज मैं बैटिंग करूंगा, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अरे बाप रे शौकत और ना होना भाई। टॉस जीत के भी कौन सा अरे फर्क पड़ रहा है, विकेट तो सेम ही रह रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई बट उस एटलीस्ट अगर आप एनालिसिस को। बॉलिंग करोगे, एटलीस्ट अगर आप बॉलिंग करोगे, आपको ये तो पता चल जाएगा कि कल से और आज में कितना डिफरेंस है विकेट पे। या एक बहुत सिंपल है, अगर देख, बारिश का कंडीशंस माहौल है। ओवरकास्ट है, बारिश का हाँ माहौल है, हाँ, कंडीशंस तो ओवरकास्ट है। बॉलिंग ले लो, ठीक तो है, हवा चुपचाप बॉलिंग ले चलेगा। लो। हाँ, ठीक तो है, चुपचाप पिच का बॉलिंग तुम्हें ले लो, पता नहीं नहीं है खेलने क्या का होने है वाला। और काफी। रोहित शर्मा ने बोला है ना भाई, उसको पता ही नहीं है, क्यूरेटर को नहीं पता किस तरीके से होने वाली है घास, जैसे तूने बोला पूरा काट दिया उन लोगों ने। हाँ ठीक हाँ, है, और अब वो उगने बढ़िया लगा से है। रोलर चला रहे हैं उस पे। तो अभी पता नहीं भाई कि किस तरीके से होने वाला है पिच। तो डेविड मिलर ने बोल दिया यहाँ खेल लो, तो जरूरी थोड़ी है कि वहां खेलने है, क्योंकि अभी बेस्ट ऑप्शन तो यही है ना, हम लोग को तो मालूम नहीं क्या होने वाला है। अगर अगर कंडीशन ओवरकास्ट होगा ना, और अगर मोहम्मद आमिर दौड़ते दौड़ते आएगा ना, मैं चला जाऊंगा सीधा ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है सिमिलर कंडीशंस था। वो रखेंगे अपना डीप पॉइंट थोड़ा सा इस तरफ, थर्ड मैन की तरफ, एक गली दो स्लिप, सब 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 चालू हो जाएगा। अंकित, हाँ। अंकित अरे दोनों बैट्समैन के लिए, दोनों राइट हैंडेड, दोनों लेफ्ट पे प्लेयर, रखा है पूरे मैंने। 11 के लिए बोल रहा हूँ मैं। इट इज नॉट अबाउट वन प्लेयर ओनली। दिस वर्ल्ड कप इज नॉट अबाउट वन प्लेयर, दिस वर्ल्ड कप इज अबाउट ऑल द 11 प्लेयर्स। एंड या व्हाट दैट वन पर्टिकुलर प्लेयर का जो रोल है ना, वो उसी रोल को अगर सब प्लेयर निभाएंगे ना तो सही रहेगा। लाइक नहीं, ऑफ इट्स कोर्स नॉट दैट इज हाउ, एक दैट इज एक हाउ आदमी के कंधे पे नहीं है, एक that आदमी is के how कंधे पे T20 नहीं is है। actually getting played ना यार, हाँ, but the point is that they हाँ। have two left armers, one is Amir, the other one is Shine Afridi। और वो राइट हैंडर कम थोड़ी ना है, वो भी तो, उसको क्रैम्प हो जाता है, वो बॉलिंग करता है 140 पे। भाई लेकिन यार तू नसीम शाह यार, I भाई really मेरा loved him in the फेवरेट Asia बॉलर है, Cup। पता है। वो I जो really loved him क्रैम्प in में the उसने बॉलिंग किया था ना यार, मेरे को वो लड़का तब से पसंद है, पता है। उसको क्रैम्प हो रहा है, वो भाग रहा है यार, यार ग्रेट है बंदे। भाई सुन रहे हैं ना, अक्रॉस द बॉर्डर, हम लोग नहीं है ऐसे यार। वी लाइक पाकिस्तान क्रिकेट ऑल्सो, क्रिकेट। बट भाई क्या सीन है मतलब अंकित, इफ वी बैट फर्स्ट, व्हाट इज गोइंग इमाद भाई के बारे में टू, बताओ ना सीनियर, इफ थोड़ा वी इमाद इफ भाई के वी बारे में। हाँ इमाद भाई का। इमाद भाई यार, हल्के में मत लो इमाद भाई को यार, ही इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर, आई एम टेलिंग यू। उसको मालूम है विकेट कैसे निकालना है, हाँ, और उसको रन कितना। यार आर यू तू ट्राइंग टू से अगर, दैट वी शुड नॉट टेक हिम इन लाइटर, यू शुड नॉट नो टेक इट्स लाइटर नॉट ऑल्सो। अबाउट द लाइटर एंड ऑल, मानस लाबुशेन थोड़ी ना है। हल्के में। मानस लाबुशेन ने किया था ऐसा करके। अच्छा ठीक, कमिंग ना ना, देखा जाए यार सही है, 11 प्लेयर्स के अगर कल हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें ना, सिर्फ 35-39 बनाया ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, इसके बाद सबने 30-32 तीस। 30-32 ऐसे रन बनाओ, 200 पहुंच जाएगा। मत बनाओ आप 50, ग्लोरी मत देखने जाओ, इतने करेक्ट। रन चिप करो सब लोग, एंड यू विल विन। एंड सब ऑस्ट्रेलिया को राजा ये है इस बात पता 11 में, चल गई है, ऑस्ट्रेलिया को ये इस बात 11 पता में चल सब गई है। राजा है। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया को ये बात पता चल गई, अगर आपसे क्लिक नहीं हो रहा है, आप रन बना के जितना आपसे बन रहा है और निकलो, पीछे वाले को हाँ, आने दो। ये सालों से लोग बोलते आ रहे हैं T20 के बारे में, और लोगों ने रिटायर किया है भाई, इंटरनेशनल गेम्स में रिटायर किया है कि भाई तू आजा, नहीं हो रहा तेरे से। हाँ, तो 30-35 रन जोड़ो सब लोग मिलके, टिल 7, बन गया 200 आराम से, कोई दिक्कत एंड नहीं है। एंड वन मैन हैज द बेस्ट रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन द लास्ट 4-5 मैचेस, सो या, नो प्रेशर, बट या। लेट्स सी। भाई आज हर्षा खेलने का बोगले था। ने बोल दिया भाई, इट इज द ऑरा ऑफ कोहली इट इज द इंटिमिडेशन, द डेथ स्टेयर, गेट्स पाकिस्तान। द मॉडर्न डे लेजेंड। लेट्स सी हाउ इट बढ़िया गोस। है पर ठीक है, बट एक और गेम है जिसको मुझे पता नहीं कि कोई देखने वाला है कि नहीं देखने वाला। शायद ओमान और स्कॉटलैंड भी नहीं देखने वाले, और वो है ओमान वर्सेस स्कॉटलैंड एट 10:30। या और पता नहीं, जब इंडिया और आयरलैंड के टाइम पे कोई मैच नहीं रखा इन लोगों ने, तो शेड्यूलिंग इतनी बढ़िया करी है कि ओमान और स्कॉटलैंड का भी मैच रख दिया है इन लोगों ने 10:30 पे ही।
At the same ओमान और स्कॉटलैंड वाले इंडिया पाकिस्तान देख रहे होंगे। जैसे श्रीलंका मैच देखने आई थी, किसी को तो मैच देखने आई थी श्रीलंका, पता है? हाँ, पाकिस्तान और पाकिस्तान यूएसए का का, ही उसके बाद हार गई पाकिस्तान और यूएसए बांग्लादेश का के। मैच देखने आए थे वो। हाँ उन्होंने कहा कि चलो अभी होटल पास में आ गया है तो देख लेते हैं, चल के चले गए होंगे वो लोग। मैच, पाकिस्तान ने भी होटल पास में ले लिया अपना। हाँ, पाकिस्तान ने भी होटल पास में, 15 मिनट की दूरी, क्योंकि ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी देखो क्या होता है आज, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैकर। आई एम श्योर दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू कम बैक स्ट्रांगली आफ्टर द लॉस, after the heavy loss against the United States of America, and we anyway don't need any reason to perform against Pakistan, and yeah, so we are going to be we are going to have a very very strong comeback if things go down south. So yeah, hopefully this is going to be a cracker, and the weather does not play a spoil sport, and we'll see you after the game tomorrow morning, and hopefully we are all here with a smile on our face. We are on X, we are on Facebook, we are on Instagram, we are on YouTube. Please show us some love by like, share, and subscribing our content. And yeah, we'll see you tomorrow. Take care. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।